Good morning, students. Myself, Dr. UK Yadav, PhD Bio at JNV Samastipur, Bihar. And after a long time, I am going to face you people. And in continuation with the NCERT class 10th, especially biology portion, and the chapter is How do organisms reproduce. तो पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था asexual reproduction. And in asexual reproduction there are fission, that means binary fission, multiple fission, fragmentation, regeneration, spore formation and tissue culture. Now it is the turn for vegetative propagation. As the name indicates, vegetative, that means those parts of plant which are not meant for reproduction. That means in case of plant, the parts of plant may be categorized, may be divided as reproductive part and vegetative part. Whenever we are sowing the seed, then there will be miniature plant. The seed will germinate and it will lead to the formation of miniature plant. After that, there will be growth in the plant. That means there will be formation of root, there will be formation of shoot. Later on, the shoot will be differentiated into stem, branch, leaves, and after certain interval of time, as per the life cycle of the plant, there will be formation of floral bud. That will lead to the formation of flower. So floral bud, flower, fruits, seeds, these are the reproductive structures. That means seed is meant for reproduction, but some of the plant where there is no formation of seed, and some of the plant where formation of seed is there, but the seeds are not viable, the seeds are not functional. In case of rose, गुलाब में देखे होंगे कि फ्लावर होते हैं, सीड भी बनता है, लेकिन सीड से फ्लावर के पौधे नहीं बन पाते हैं. So in that condition where there is no formation of seed, चाइना रोज में देखे होंगे flower is there, flower is bisexual, but even then there is no formation of seed. So in case of that plant where either there is no formation of seed or the seeds are not viable, the seeds have lost their capacity to germinate, in that case there is vegetative propagation. That means वहाँ क्या होंगे, plant के other part से like root, stem, leaf, branches, इन सारे पार्ट से क्या होंगे, रिप्रोडक्शन होंगे. तो आज इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. दैट मींस रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ रूट, बाय मींस ऑफ स्टेम, बाय मींस ऑफ लीव्स. सो द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज the mode of reproduction in which new plants are being formed from its vegetative parts. Vegetative part of plants like root, stem, leaf, branches. So from here, that means the parts of plant may be divided into two, that is vegetative and reproductive. That means initially there will be growth of the plant and there will be vegetative growth. And later on, when maturity will come, when sexual maturity will be attained by the plant, then only there will be evolution of, there will be eruption of, there will be formation of these parts. So in case of seasonal plant, like all the cereals, grains like rice, wheat, maize, all the pulses, they are annual plant. And there will be only one in their life cycle, flowering, formation of seed. But in case of perennial plant like mango, like lychee, like guava, there will be formation of seed, there will be formation of flower in a particular season. So they will produce seed year after year. But in case of plant which is annual, that means they are completing their life cycle in single season, there will be flowering and after that there will be death of the plant. That means the whole aim, the target of the plant is to reproduce.
That means formation of seed, and after formation of seed, there will be death of the plant. That means they are completing their life cycle after formation of seed. So today I would like to show you some of the examples which are being propagated with the help of vegetative propagation. Very commonly you can see now during summer there will be death of grasses, but they will remain alive, and whenever there will be rain they will start propagating. जो भी ग्राउंड है वहाँ के घास सूख जाएंगे, डेड हो जाएंगे, लेकिन इसकी जो गांठें हैं, इसके जो नोड्स हैं, इसके जो स्टेम है, they will remain alive, and whenever there will be rain, ये क्या करेंगे? प्रोलिफरेट करेंगे, इसमें नए ब्रांचेस आने शुरू हो जाएंगे, नए रूट बनने शुरू हो जाएंगे. तो ग्रासेस में होता है क्या? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. हम लोग लगाते हैं बाय रूट कटिंग, बाय स्टेम कटिंग. इन केस ऑफ चाइना रोज, अरहुल में लगाते हैं, स्टेम कटिंग करते हैं. गुलाब में लगाते हैं हम लोग, स्टेम कटिंग करते हैं. उसके बाद केले में हम लोग लगाते हैं, स्टेम से इसका प्रोपेगेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है. इन केस ऑफ शुगर केन देयर इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय कटिंग देयर स्टेम. सो आई वुड लाइक टू शो यू द कॉमन थिंग्स व्हिच आर अवेलेबल अराउंड अस, एंड दे आर बीइंग प्रोपेगेटेड विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव मोड. तो इन सारी चीजों को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है. हाउ इट टेक्स प्लेस? इट इज ऑल द थिंग्स इन आवर सराउंडिंग. सो लेट अस ऑब्जर्व सम ऑफ द एग्जांपल्स व्हिच इज मीant फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. बेसिकली इन केस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होते हैं? कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग. कटिंग का मतलब हुआ कि हम लोग स्टेम को कट करते हैं या रूट को कट करते हैं और उसके कट किए हुए पीसेस को लगाते हैं, और उससे फिर क्या होता है? इसमें जो नोड होते हैं, नोड से बेसिकली देयर विल बी इमर्जेंस ऑफ रूट एज वेल एज शूट. तो इसको हम लोग बोलते हैं कटिंग. दूसरा है लेयरिंग. वैसे ब्रांच जो नीचे होते हैं, जहां प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होती है नियर बाय द अर्थ ग्राउंड, तो वहां क्या करेंगे? नीचे वाले ब्रांच को हम लोग क्या करते हैं? मिट्टी में दबा देते हैं, लेयर बना देते, और फिर वहां क्या होंगे? जो मिट्टी के कांटेक्ट में नए रूट्स का इमर्जेंस होगा, और फिर मदर प्लांट से उसको सेपरेट कर देते हैं. दैट इज लेयरिंग. नींबू में हम लोग करते हैं, लेयरिंग करते हैं, ये बहुत ही कॉमन है. कटिंग, स्टेम कटिंग हम लोग करते हैं इन केस ऑफ रोज, इन केस ऑफ चाइना रोज स्टेम कटिंग करते हैं. आलू में हम लोग लगाते हैं बाय स्टेम कटिंग. शुगर केन स्टेम कटिंग. और तीसरा है ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग में क्या होता है? फॉर मेंटेनेंस ऑफ द क्वालिटी. जो हायर क्वालिटी के प्लांट है उसकी हम लोग ग्राफ्ट लगाते हैं. तो ग्राफ्ट में क्या करेंगे? जो नीचे रूट होगा प्लांट का उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक, और जो ऊपर हम लोग ऐड करते हैं उसको बोलते हैं सीओन. तो इसमें जो सीओन होंगे उसकी क्वालिटी होगी, और जो स्टॉक है दे विल प्रोवाइड सपोर्ट, दे विल प्रोवाइड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. और ये देखेंगे मैंगो के केस में ग्राफ्टिंग बहुत ही कॉमन है, और ये ग्राफ्टिंग दो तरह से होगा. एक तो नीचे जड़ लगाएंगे, यानी कि सीड से बनाएंगे. जैसे मैंगो है तो मैंगो के सीड से छोटा पौधा बनेगा, फिर क्या करेंगे? उसकी स्टेम को काट करके और उसके ऊपर जो डिजायर्ड प्लांट है सेम थिकनेस के स्टेम को कट करके फिर एक दूसरे को बाइंड कर देंगे, और ये आपस में जुड़ जाएंगे, पौधे बन जाते हैं. दूसरा हम लोग करेंगे एयर ग्राफ्टिंग या एयर लेयरिंग, कि हवा में ही एयर लेयरिंग. लीची के केस में या अमरूद के केस में, नींबू के केस में क्या होता है? ऊपर के जो ब्रांचेस हैं वहां क्या करेंगे? स्लाइड उसके छिलका को हटाएंगे, बाल को हटाएंगे, और वहां गीली मिट्टी लगाएंगे, और इसे पॉलीथीन से टाइटली क्लोज करेंगे. और जनरली ये बरसात के दिनों में करते हैं, सो दैट दे विल गेट कंटिन्यूअसली मॉइस्चर, वाटर अवेलेबल रहेंगे, और फिर क्या होंगे? उसमें रूटिंग होगी, और जब उसमें रूट की फॉर्मेशन हो जाएगी फिर इसको मदर प्लांट से सेपरेट करेंगे और उसको हम लोग ट्रांसप्लांट करेंगे इनटू मेन फील्ड. सो दीज आर द मेथड जनरली वी आर एडॉप्टिंग इन केस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तो हम लोग देखें कुछ एग्जांपल्स जो कि बहुत ही कॉमन है. तो जो सबसे कॉमन एग्जांपल है दैट इज दूब ग्रास. जो ग्रासेस है, दूब ग्रास है, तो उसमें देखेंगे आप यहाँ क्या होती है? ये दूब ग्रास है, तो ये इसका जड़ है, दैट मींस दिस इज द मेन प्लांट. और यहाँ से क्या हो गया? ये डिफरेंट डायरेक्शंस में, इसके जो स्टेम है डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, चारों तरफ ये फैलते हैं, और ये क्या होंगे? जहां जहां इसमें नोड है वहां ये धरती में टच करेंगे, और वहां से क्या होगी? देयर विल फॉर्मेशन ऑफ रूट,
यहाँ क्या होंगे, नीचे रूट की फॉर्मेशन हो रही है और ऊपर सूट की फॉर्मेशन हो रही है। हर एक जगह देखिए ये रूट बना रहा है और ये ऊपर की ओर सूट बना रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रनर, यानी कि ये दौड़ते हुए चलता है। देखिए हर एक जगह रूट दिखाई दे रहा है, ये नीचे की ओर रूट बन गया, ऊपर सूट। तो ये बहुत ही कॉमन है और ये दिखा रहे हैं क्या, दिस शोज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये क्या होंगे, गर्मी के दिनों में ये सूख जाएंगे, पत्ते सूख जाएंगे, लेकिन ये स्टेम जिंदा रहेगा। और ये नोड यहां से क्या होंगे, ये जो स्पेस है, ये स्पेस, दिस इज द इंटर नोड, इसको हम लोग बोलेंगे इंटर नोड, और दिस इज नोड। और यहां से क्यों बनते हैं, क्योंकि यहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं जो डिवाइड करेंगे और डिवाइड होकर के रूट और सूट बनाएंगे। क्योंकि इस पार्ट में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे वो क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक इसकी मोटाई बढ़ा सकते हैं। यहाँ कोई फॉर्मेशन नहीं होगी। तो यदि इसको हम लोग लगाते हैं और इस पोर्शन को लगाए कि इस बीच के भाग को, तो यहाँ से कोई प्लांट नहीं बनेगा। ठीक है। दूसरा बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है और वो है मिंट, पुदीना। अभी गर्मी के दिनों में हम सभी यूज करेंगे पुदीने का, मिंट का। तो देखिए ये यहाँ जैसे स्टार्ट हुआ यहाँ से, फिर क्या हो, ये यहाँ आकर के रूट की फॉर्मेशन हो गई, यहाँ रूट का फॉर्मेशन हो गया और फिर ये नए प्लांट बन गए। दिस इज ग्रोइंग, ये ग्रो कर रहा है। और फिर ये सभी क्या होंगे, ऊपर की ओर नए पौधे बना देंगे, फिर इनका भी ग्रोथ होगा। तो ये काफी फास्ट इसकी ग्रोथ होती है। देखिए यहाँ ये रूट बन गए हैं और यहाँ से ये नए पौधे निकल रहे हैं। तो इस तरह से इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है। आप लहसुन देखे होंगे, गार्लिक, गार्लिक के केस में क्या होता है, इसके जो बल्ब होते हैं, तो इसमें अभी ये तैयार हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होंगे, छोटे छोटे पीसेज होंगे और उन पीसेज को हम लोग क्या करेंगे, जब इसका सीजन आएगा इसको लगाएंगे और उसी से फिर ये नए लहसुन बन जाते हैं। तो ये हम लोग क्या करते हैं, बल्ब को लगाते हैं लहसुन के केस में और प्याज के केस में, और इससे प्रोपेगेशन होती है, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्याज के केस में दोनों ही मोड है, सीड की, यहाँ सीड की फॉर्मेशन नहीं होती है, लहसुन में सीड की फॉर्मेशन नहीं होती। जब भी होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा। प्याज में देखें ये क्या है, इसको हमने प्याज से ही लगाया था, इसकी रूट की फॉर्मेशन हो गई, दिस इज फाइबरस रूट। ये क्या है, प्याज के केस में ये फाइबरस रूट है। और साथ ही साथ इसमें आपको दिखाई देगा इसके टॉप पे, इसमें देखेंगे तो दिस इज फ्लावर, ये फ्लावर है। तो इस फ्लावर से सीड बनेंगे और इससे जो प्लांट बनेंगे वो भी रिप्रोडक्शन होगा। और बेसिकली हम लोग इसके सीड से ही पौधे बनाते हैं और इसके सीड को हम लोग खाते भी हैं। ब्लैक ब्लैक देखते होंगे कचौड़ी में जो दिखाई देता है वो इसका सीड है, यही मैच्योर होंगे, है ना, जिसको हम लोग बोलेंगे मंगरेला, मंगरेल अजवाइन। तो ये मंगरेला क्या है, सीड ऑफ ओनियन। तो यहां भी क्या होगा, प्रोपेगेशन होंगे वेजिटेटिवली। नेक्स्ट वन इज द वेरी कॉमन एग्जांपल एंड दैट इज सुगर केन। आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द सुगर केन। ये नीचे का भाग है जो मिट्टी में लगे हुए थे, रूट है इसकी। यहां से ये रूट क्या होंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, है ना, कहां से, नोड से निकलते हैं। और इसी को हम लोग मिट्टी में दबाएंगे, मिट्टी में लगा देंगे तो क्या होगी, इसे हमने पानी में रखा था 2-3 दिनों के लिए और यहाँ देखिए यू कैन सी हेयर दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सूट। तो इसे यदि मिट्टी में लगा दिए जाए तो क्या होंगे, इस नोड से रूट की फॉर्मेशन होगी और ये फिर क्या होगा, ग्रेजुअली इट विल बिकम स्ट्रेट, ये जर्मिनेट कर रहा है। और ये जो प्लेस जहां से निकल रहा है, दिस इज नोड, इसको नोड करते हैं हम लोग, दिस वन इज इंटर नोड, ये इंटर नोड है। और देखिए हर एक नोड पे दिखाई देगा दिस इज आई, इसको कहते हैं आंख। तो जब भी ईख को लगाते हैं हम लोग, क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन नोड, वन आई मस्ट बी देयर। अदरवाइज जैसे इस बीच के भाग को लगाए तो क्या होगा, ये प्लांट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, कहीं भी कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है। और नोड पे क्या है, देयर आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो ये ग्रोथ होगा और ये नए प्लांट को बनाएंगे। तो जब भी लगाते हैं हम लोग इस तरह से छोटे छोटे पीसेस काट करके लगाते हैं, तो इसमें क्या होंगे, एक पौधा यहाँ बनेगा, एक पौधा यहाँ बनेगा, इसमें क्या होगा, एक यहाँ बनेंगे, एक यहाँ बनेंगे, ये यहाँ बनेंगे। फिर ये आपस में मैनेज कर लेते हैं, जैसे इस तरह से डाल दिए तो डालते समय ये नहीं देखते ये ऊपर है या नीचे, बट दे विल मैनेज देमसेल्फ, क्योंकि इसमें जो सूट होंगे दे आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, ऑटोमेटिकली ऊपर की ओर जाएंगे। और जो रूट होगा वो क्या होंगे, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक, लाइट से दूर जाएंगे, दैट मीन्स पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। तो ये कहां जाएंगे, ये ऊपर की ओर जाएंगे सूट सिस्टम और नीचे की ओर जाएंगे रूट सिस्टम। और ये इसका टॉप है, जो पत्ते होते हैं इस तरह के पत्ते हैं एक के, आप सभी देखेंगे, दिस इज वेरी कॉमन, है ना, सैक्रम ऑफ एसियनेरियम।
दिस इज शुगर केन। इन केस ऑफ बनाना, ये रहा बनाना, दिस वन इज द स्टेम। तो यहाँ भी प्रोपेगेशन किससे हो रहा है? स्टेम से हो रहा है। जो मदर प्लांट है उससे ये आउटग्रोथ होती है, उसके स्टेम से, उसके नोड से, और फिर ये इसका क्या होगा? सेपरेट इसका एग्जिस्टेंस होगा। ये अपने आप में एक नए पौधे बना देंगे और फिर ये बड़े होंगे। फिर इससे साइड से यहाँ भी क्या होगा? इसके बगल से और भी पौधे निकलेंगे। तो ये क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। देखिए अभी छोटा सा पौधा है, इसको लगा देने के बाद लगभग साल भर बाद इसमें फल आ जाते हैं। लगभग 1 साल बाद ये आपको, आज यदि लगाते हैं तो उम्मीद करते हैं अगले साल इस समय आप इससे केला खा लेंगे। ये देखिए ये फ्लावर है, ब्यूटीफुल फ्लावर हैविंग वेरी गुड स्मेल। तो यहाँ भी क्या होता है? स्टेम से हो रहा है। देखिए दिस इज द स्टेम और दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ रूट। जब मिट्टी में लगाएंगे ये रूट ग्रो करेगी और ये काफी अच्छा पौधा, बड़ा पौधा बन जाता है। अभी इसमें लीफ नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए ये सभी बर्ड्स हैं। ये क्या है? लीफलेट्स। ये लीफ बनाएंगे, लीफ के लिए प्राइमोडियल है। ये सभी क्या बनाएंगे? लीफ बनाएंगे, नए पत्ते बनाएंगे। क्योंकि पतझड़ है तो सारे के सारे पत्ते झड़ गए हैं और ये अब नए पत्ते बनने जा रहे हैं। ये एलोवेरा, बाबा रामदेव बहुत ही फेमस बना दिया इसको, काफी अच्छी चीज है। इसका यूज करें एज एंटीसेप्टिक, इसका यूज करते हैं। तो इसमें भी क्या होता है? स्टेम से ही इसकी ग्रोथ होती है। इसको लगा देंगे और फिर क्या होंगे? इससे नए पौधे, इसके साइड से ब्रांच निकलेंगे और बहुत ही फास्ट ग्रोथ होती है। और इसके अंदर जो पाया जाता है दैट इज द जेल, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं आफ्टर सेविंग, सेविंग क्रीम है ना। दिस इज द जेल, ये इसका जेल है। और बहुत ही इसका आज के डेट में सौंदर्य प्रसाधन में हम समझते हैं ये टॉप पे चल रहा है। दिस इज द जेल ऑफ एलोवेरा। नेक्स्ट वन इज द स्नेक प्लांट। हम लेते हैं, इसको जानते हैं। ये यहां से क्रैक कर गया है, टूट गया है। देखिए ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हाउ द प्लांट्स आर ग्रोइंग, हाउ द प्लांट्स आर प्रोपेगेटिंग फ्रॉम इट्स स्टेम। स्टेम से किस तरह से नए प्लांट निकल रहे हैं देखिए। और इसको हम लोग कहते हैं प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर प्लांट। ये क्या है? एयर प्यूरिफायर प्लांट है। तो इसे हम लोग लगाते हैं, इंडोर भी लगाते हैं और ये बहुत ही हार्डी है। इसको आप कहीं भी लगा देंगे, बड़े मजे में ये ग्रो कर जाएंगे, सरवाइव करेंगे। हमने एक बार इसको लेकर के अपने घर में रख दिया था और करीब 10 दिनों तक एज इट इज पड़ा रहा। फिर उसके बाद लगाया एंड इट वाज अलाइव। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर, हाउ ब्यूटीफुली दे आर मैनेजिंग देयर लाइफ। वेरी कॉमन, दिस इज द चाइना रोज, अड़हुल का फूल है ये। तो ये ब्रांच है इसके, तो ये काफी पतले ब्रांच है। लेकिन जब भी हम लोग लगाएंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए तो कंपैरेटिवली थोड़ा थीकर ब्रांच लेते हैं जिसमें कि फूड स्टोर्ड हो। तो इसमें अलग अलग वेराइटी होती है, अलग अलग तरह के फूल आते हैं। तो थोड़ा हार्डी लेंगे, थोड़ा स्टेम जिसका थिक हो उस तरह के स्टेम को लेते हैं। तो उसमें फूड स्टोर होगी और जहां लगा देंगे तो क्या होगी? यहाँ से रूट की फॉर्मेशन होगी और ये कंप्लीट इसका एग्जिस्टेंस होगा। देखिए इसको हमने लगाया था लगभग महीना दिन पहले। दिस वन इज ऑल्सो चाइना रोज, चाइना रोज की ही वेराइटी है, रूल है। इसमें छोटे छोटे फूल लगते हैं और बड़े अच्छे फूल लगते हैं। और देखिए इसके नोड से रूटिंग स्टार्ट हो गई, रूट की फॉर्मेशन। देखिए ये मैंने कट किया था और यहाँ से रूट की फॉर्मेशन हो गई। तो इस तरह से नए प्लांट बन गए। इन केस ऑफ रोज, दिस इज द देसी वेराइटी ऑफ रोज, देसी वेराइटी है ये, देख रहे हैं। इसको जब कभी आप लगा देंगे ये क्या होगा? नए रूट की फॉर्मेशन होगी और ये कंप्लीट प्लांट बनाएंगे। यहाँ देखिए दिस इज रोज, कटिंग लगभग महीना दिन पहले मैंने किया था और ये दोनों पौधे अपने आप में एस्टेब्लिश हो गए हैं, रूट को बना चुके हैं। और साथ ही साथ देखिए कितना अच्छा यहाँ बर्ड्स दिखाई दे रहा है जो कि ब्रांच बनेंगे। दीज ऑल आर बर्ड्स दैट इज गोइंग टू फॉर्म द ब्रांचेस, यानी कि कुछ ही दिनों में ये पौधे पूरे कंप्लीट हरे भरे हो जाएंगे। रात की रानी, देखिए ये रात की रानी है, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर है, व्हाइट फ्लावर होते हैं और काफी अच्छी सुगंध, काफी अच्छी खुशबू आती है इससे। और इसको हम लोग अपने घरों के आसपास लगाते हैं। तो इसकी हम लोग इस तरह से कटिंग करते हैं। दिस इज द मेथड ऑफ स्टेम कटिंग। इसको लगाएंगे, स्लाइड तिरछा लगाते हैं, मिट्टी में दबा देंगे इतने भाग और इसमें नमी रहेगी, यानी कि वाटर प्रोवाइड करते रहेंगे और इससे नए पौधे बन जाएंगे। तो ये हमारा स्टेम कटिंग है। एंड दिस वन इज द ब्यूटीफुल ब्रायोफाइलम, है ना, पत्थर चूड़ भी कहते हैं, पत्थर चट्टा भी कहते हैं इसको। दिस इज ब्रायोफाइलम। तो यहाँ क्या हुआ कि ये जितने नॉच दिखाई दे रहे हैं,
जो मार्जिन है, दिस वन इज द लीफ ब्लेड, दिस वन इज द मार्जिन, इसकी ये मार्जिन है। तो जहां जहां से ये खास दिखाई दे रहे हैं, ये यदि सॉइल के कांटेक्ट में होते तो हर एक जगह से नए पौधे बन जाते। अब ये क्या था, लीफ ऐसे थे तो ये टच किया, ये पार्ट क्या हो गया, सॉइल के कांटेक्ट में आ गए, और सॉइल के कांटेक्ट में आने से देखिए यहाँ नए पौधे बन गए। ये कितना बढ़िया, इससे कंप्लीट रूट की फॉर्मेशन हो गई है ना। तो इसमें जहां देखिए, यहाँ जहां खांच है स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये छोटे छोटे पौधे, नन्हे पौधे बन गए हैं। कहां से, इसके मार्जिन से, द मार्जिन ऑफ लीफ ये बना हुआ है। तो चूंकि ये ऐसे ही नेचुरली था, यदि हम चाहें तो इसको सॉइल के कांटेक्ट में, इसके ऊपर यानी कि इसे मिट्टी में दबा देंगे कि नमी इसे मिलता रहे, और मिट्टी से ये न्यूट्रिएंट्स लेते रहेंगे, वाटर लेते रहेंगे, और सारे के सारे जितने नॉचेज हैं वहां से नए पौधे का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो दिस इज ब्रायोफाइलम। और यहाँ क्या हो रहा है, लीफ से रिप्रोडक्शन हो रही है। देखिए लीफ के मार्जिन से नए पौधे बन चुके हैं ये। तो ब्रायोफाइलम में क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ द लीफ, लीफ के द्वारा रिप्रोडक्शन हो रही है। जनरली हम लोग पढ़ते हैं लीफ इज मींट फॉर फोटोसिंथेसिस, बट हियर एक्सेप्शनली लीफ इज मींट फॉर रिप्रोडक्शन, एंड दिस इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दिस शोज द वेजिटेटिव mode of propagation, vegetative reproduction with the help of stem. This one is the mother stem which I had planted, and this shows its node from where adventitious root has emerged. Another node from where shoot as well as root has been emerged, and in the root it is adventitious root and it is solid due to the storage of food. It has stored starch. So this shows the beauty. This is a beautiful example for vegetative propagation. This one is the mature sweet potato, and you can see from its root also it leads to vegetative propagation. That means in next season, if the root remains in the soil, then there will be emergence of plantlet, and further this stem after growing, this will be planted by cutting it into pieces. और इसमें शर्त यही है कि हर एक पीस में कम से कम एक नोड होने चाहिए, और उसी नोड से फिर क्या होंगे, फर्दर इसका प्रोपेगेशन होगा, इसकी ग्रोथ होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन केस ऑफ स्वीट पोटैटो। दिस इज ओल, जिसकी हम लोग सब्जी खाते हैं, काफ़ी टेस्टी होता है। तो ओल को जब लगाते हैं तो क्या करते हैं, ये छोटे साइज का है तो इसको कंप्लीट लगाएंगे, एक को एक जगह लगाएंगे, और देखिए इसमें स्टार्ट हो गया है फॉर्मेशन, शूट सिस्टम की फॉर्मेशन, और साइड से रूट भी बनने लगे हैं। तो लेटर ऑन ये क्या होगा, इसको तैयार होने में लगभग 9 महीने लग जाते हैं। तो 9 महीने बाद इसमें ये क्या होंगे, ये सड़ चुकेगा, ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा, इसे फूड प्रोवाइड करेगा, इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, और फिर नए स्टेम जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। दिस वन इज द पोटैटो। देखिए पोटैटो है, इसे हमने मॉइस्चर में रखा था, सॉइल में रखा था, और यहां दिखाई दे रहा होगा कि ये आंख है, ये क्या है, आंख है, और आंख एक्चुअली है क्या, दिस वन इज द नोड। तो ये जो जगह है ये क्या है, नोड है, और यहाँ क्या है, नोड है। तो ये जो स्पेस है यानी कि दो नोड के बीच में ये क्या होगा, इंटर नोड। तो जब भी आलू लगाएंगे तो क्या करेंगे, इस तरह से इसको पीसेज में कट करेंगे कि कम से कम एक आंख, एक नोड उसमें आ जाए। तो एक आलू से हम लोग 3-4 पीस बनाएंगे, और 4 के 4 नए पौधे इससे बन जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबर ऑफ पोटैटो। दिस इज ट्यूबर ऑफ पोटैटो। और ये जेरोफाइटिक प्लांट, इसको हमने लाया था फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, बच्चों को दिखाने के लिए। दिस इज जेरोफाइटिक एडेप्टेशन, शोइंग जीरोफाइटिक एडेप्टेशन। तो इसमें देख सकते हैं कि यहाँ रूट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, यानी कि इसमें भी क्या होंगे, इसकी स्टेम को यदि हम लोग लगा देते हैं तो क्या होंगे, वो नए पौधे बनाएंगे। दिस वन इज कैक्टस, काफी हार्डी प्लांट है ये, कम पानी में भी ये एलाइव रहता है। तो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब आपके जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्न ये पूछे जाएंगे कि हाउ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज बेनिफिशियल और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो सीधी सी बात है, इसमें क्वालिटी मेंटेन रहेगी। पहली बात क्या होगा,
द क्वालिटी विल रिमेन कांस्टेंट। दूसरी बात क्या होगी, प्लांट विल ग्रो फास्टर, दैट मींस दे विल गिव फ्रूट अर्लियर। तीसरी बात होगी, वी कैन सेलेक्ट ओनली हेल्दी प्लांट। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो यहाँ क्लास 10 के लेवल पे जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो यही पूछे जाएंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, हाउ दे आर बेनिफिशियल। तो इसमें जो सबसे पहले बात है, सबसे फर्स्ट ये है कि इट टेक्स लेस टाइम इन फ्रूटिंग, क्योंकि हम जो बीज से पौधे तैयार करेंगे, बीज से बड़े होंगे तो इसमें समय अधिक लगेगा। और जब वेजिटेटिवली हम लोग प्रोपेगेट करते हैं तो क्या होता है, ये फास्टर है, यानी कि इसमें जो फ्रूटिंग है वो जल्दी आएगी। यदि सीड से हम लोग आम का पौधा लगाए तो इसको फल देने में हो सकता है 10 साल लगे कम से कम, लेकिन यदि हम लोग लाते हैं वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट तो वहां क्या होंगे, हो सकता है कई बार तो फ्रूट लगे रहते हैं, नर्सरी में ही देखिएगा कि फ्रूट्स लगे हुए हैं, या फिर अगले साल से क्या होंगे, ये फल देना स्टार्ट कर देंगे। क्वालिटी इज मेंटेन्ड, जो भी फ्लावर है, फ्रूट है, वो हूबहू क्वालिटी जो हम लोग तैयार करेंगे वेजिटेटिवली, नए प्लांट बनाएंगे, वो सारे के सारे एज इट इज क्वालिटी रहेगी, क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं होगी। ये सबसे बड़ी विशेषता है, इसीलिए हम लोग इसको प्रेफर करते हैं। वी कैन सेलेक्ट डिजीज फ्री प्लांट, हम लोग लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वैसे को ही हम लोग ग्रो कराएंगे, उसी को हम लोग प्रेफर करेंगे जो डिजीज फ्री हो, यानी कि जो भी पौधे बनेंगे हमारे क्या होंगे, दे विल बी डिजीज फ्री। डिजीज फ्री प्लांट होगा। मोर एंड मोर प्लांट्स ऑफ सेम क्वालिटी कैन बी ऑब्टेन्ड, जितने पौधे हम लोग चाहे बना सकते हैं और सभी के सभी क्या होंगे, एक जैसे होंगे। यानी कि जिस तरह से माइक्रो प्रोपेगेशन में होती है कि एक ही क्वालिटी के सारे पौधे होंगे, वैसे ही यहाँ भी हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो वो फास्टर है, ये उसके रेस्पेक्ट में थोड़ा स्लोअर है, लेकिन क्या होगा कि अधिक से अधिक प्लांट एक ही क्वालिटी के ऑब्टेन किए जा सकते हैं। इट इज चीपर एंड इजियर, बहुत ही आसान तरीका है, नर्सरी में बड़ी आसानी से इसको ग्रो कराया जाता है, लगाया जाता है, और किसान लोग इसका भरपूर उपयोग करते हैं। जब भी आलू की खेती होती है, गन्ने की खेती होती है, ओल की खेती होती है, हर एक जगह इसका उपयोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से हो रहा है। So it is easier and this is best method where seeds are not formed. अब जहां सीड बन ही नहीं रहे हैं तो वहां के लिए क्या ऑप्शन होगा, तो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन that leads to the reproduction in the plant. So this is all about the reproduction in case of plants. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो को देखने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोग वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट अवश्य करें कि हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी, किस तरह से आप लोगों के लिए अधिक से अधिक बेनिफिशियल हो। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। थैंक्स once and again to all of my viewers. Thank you.